بہت ساری چیزیں اسکرین پہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کے انسسٹ کرنے پہ میں واضح کر دوں. دیکھیں آئی ایس پی آر کے جتنے بھی پریس ریلیز جاری ہوئے ہیں اس میں عموماً ہمیشہ ہمارے لیے ایک یہ ہاؤس اریسٹ یا پھر کے پی جیل میں رکھنا، یہ ساری جو عبادت، جو محنت، یہ جدوجہد ہیں، اس پہ تو پانی پھیرنے کے مترادف ہیں. یعنی کہ علالِ قوم کو یہ بتانا ہے کہ جی ہم ایک ڈیل کے نتیجے میں ایک جگہ سے بہتر جگہ نہیں، پہ اس کی میرٹس پہ تو چھوڑ دیں نا. forget the merits of it. ڈسکشن میرٹس پہ نہیں ہو رہی. ایسی کوئی آفر آئی ہے؟ دیکھیے ایک چیز ایویں تو نہیں ہوا میں بیٹھ کے بندہ کہتا کہ نہیں مجھے جانا، گھر نہیں منتقل ہوں گا، گھر بیٹھ کے ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گا، نہ منتقل ہوں گا، ایویں کر دیتا ہے بات. بہت ساری چیزیں اسکرین پہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کے انسسٹ کرنے پہ میں واضح کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ مذاکراتی ٹیبل پہ فریقین کا بیٹھنا، اور میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کریڈٹ دیتا ہوں علی امین خان کو. آج جو 1 on 1 ملے ہیں 1.25 گھنٹے میں عمران خان سے، آپ کو بعد میں مذاکراتی ٹیم کو اندر آنے دیا، پہلے نہیں آنے دیا. جی میں آپ کو عرض کروں نا، بیسیکلی پارٹی پریکٹیکلی اس وقت علی امین خان چلا رہا ہے، چاہے وہ احتجاج ہو، چاہے احتجاج کے بعد ورکر کی دیکھ بھال ہو، ان کو رہا کرانا ہو. بہت سارے جو کلیدی فیصلے ہو رہے ہیں اس میں علی امین خان کا بڑا کلیدی کردار ہے، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک نظام کا ایک حصہ ہے. اس پوزیشن میں بھی اس نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا استعمال کیا ہے اپنے کارڈز کو. پی ٹی آئی کو ان برے حالات میں، بالخصوص 26 نومبر کے بعد جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے تھے، میں یہ کریڈٹ ان کو دوں گا کہ یہ اسی کی تو فیل تھا کہ گرفتاریاں نہیں ہوئی. بالخصوص آپ کو پتہ تھا ان پہ بشرا بیوی. اچھا، ان کا کریڈٹ بھی اپنی جگہ. کوئی تو پیغام لے کر گئے ہیں جو 1 on 1 ملے ہیں اور مذاکراتی ٹیم کے ساتھ نہیں ملے. کوئی تو ایسا بندوبست کیا تھا جو مذاکراتی ٹیم کو کوئی معقول وجہ دیے بغیر کہا کہ آپ انتظار کیجئے، آپ نہیں جا سکتے، گنڈا پور صاحب پہلے جائیں گے. دیکھیں تو پیغام تو کوئی ایسا ہوگا نا سر. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ پس پردہ بھی ایک اور سائملٹینیس ڈائلاگ چل رہا ہے، گفت و شنید ہو رہی ہے، which is always the case of course naturally. دیکھیے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ پوزیشن آف ویکنس پہ ہیں، آپ کو کیوں دیں گے کچھ. ابھی بات ہو رہی تھی ان نہیں، سے. ہم کو یہ دیکھیے آپ کو اندازہ ہے کہ ویکنس پہ اگر ہم ہوتے تو یہ ہم پہ ترس کا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے. جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پیغام دیا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی انشور کریں، بیانات میں شدت کی کمی لائیں تو ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیتے ہیں، جیل سے نکال دیتے ہیں. از دس سم تھنگ وچ ہیز بین کنویڈ؟ پہلے جو کنوے ہوا تھا وہ تو 20 دسمبر کو پہلے بھی چھوڑ دیں سر، مجھے ابھی کی نہیں، بات بتائیں. میں پہلے کی بات اس لیے کہ وہ بھی پہلے بھی ہوا تھا کچھ اس طرح کا پہلے کنوے؟ کہ 20 دسمبر کو خان کو چھوڑیں گے اگر آپ سنجانی پہ ٹھہر جائیں. کہا تھا یہ ایک کمٹمنٹ باقاعدہ طور پر باقاعدہ طور پہ فارملی یہی اس پہ کہ سنجانی میں بیٹھ جاؤ، 20 جنوری کو عمران خان رہا ہو جائے گا. اس پہ اگری ہوئے تھے. اب جب وہ بات نہ بنی اور یہ وہ بھی تو رک جائیں ایک سیکنڈ کے لیے. اگر یہ کنوے ہو گیا تھا تو کون تھا یہ آئنسٹائن کا بچہ جو کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم ڈی چوک پہنچیں گے سر؟ میں تو یہ اگر رہائی ممکن ہو رہی تھی آپ کے لیڈر کی تو یہ تمغہ پہنانا چاہیے. یہ جو دو لوگ گئے، چیئرمین بیرسٹر گور اور بیرسٹر بیرسٹر سیف. سیف، اس کے علاوہ تیسرا شخص میں نامینیٹ ہوا تھا جنہوں نے ان کے ساتھ جانا تھا. لیکن مجھے اندیشہ یہ تھا کہ اگر خان بات نہ مان گئے تو یہ مجھے جیل سے گرفتار کر لیں گے، کیونکہ پھر پارٹی کی طرف سے جو ہیں وہ تہمت لگتی ہے کہ جی کوئی فرمائشی گرفتاری ہوئی. تو میں نے اس لیے پھر میں ان کے ساتھ نہیں جا سکا. یہ میں کنفرم کرتا ہوں، میں پہلے بھی انٹروڈیوس میں کہہ چکا ہوں، 20 دسمبر کو خان کو رہا کرنا تھا اور 4-5 دن سنجانی پہ رہ کے کوئی جلسہ کر کے. تو یس سر، معذرت کے ساتھ اب میں آپ کو بعد میں جو ہوا اس کے حوالے سے آج پہلی دفعہ خان صاحب کو جو ہیں قیادت نے اپنی گزارشات جو ہیں پیش کی ہے، کیونکہ کچھ عرصے سے بیانات اس طرح آ رہے تھے جیسے قیادت جو ہیں پارٹی کی وہ ناکامی کی ذمہ دار ہیں، جو کہ قطعاً غلط تھا اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. بیانات اور پھر خان صاحب کی طرف سے بھی بیان آئے جس سے جو ہیں بڑی ہی بے چینی پارٹی کے اندر محسوس ہو رہی تھی. آج جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک، خان نے قیادت پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، بالخصوص اس نے علی امین خان کے کردار کو سراہا ہے. کیوں سراہا ہے؟ جو 20 دسمبر کی رہائی خان کی ہونی تھی وہ اس میں مین کردار جو تھا وہ علی امین خان کا تھا. یہ
भेजा जाना, वापस आना, ये मुज़ाकरात 20 बेसिकली दिसंबर की रिहाई। 20 दिसंबर की रिहाई, नंबर वन। नंबर दो, अभी आज जो उनकी मुलाकात हुई है, सिर्फ इतना मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरी अपनी लिमिटेशन है कि खान जो है वो जेल भी शिफ्ट नहीं होगा और खान जो है वो हाउस अरेस्ट भी नहीं होगा, खान रिहा होगा। और खान आपको ऑफर कौन कर रहा है जेल में घर शिफ्ट होना या केपीके शिफ्ट होना? ऑफर कौन कर रहा है? अफर जो हैं, दो चैनल्स हैं। एक तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे हमारा बैठ जाना और उनका भी एग्री कर जाना, और इन मामलात को 2 तारीख और 3 तारीख को बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन वो अगर हमारे साथ बैठे हैं तो पूरी तमाम जो उनके पस पुश्त हैं उनकी रजामंदी से बैठे। एस्टैब्लिशमेंट की गो अहेड से बैठे हैं। एग्जैक्टली, उनकी गो अहेड से बैठे हैं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादा ख्वाहिश थी इनसे कि जी ये सियासी क़ुव्वतें बैठ के अपने टिवार्स डिसाइड करके फिर हमारे साथ बैठ के एक कोई हल निकाल लें। इसमें कोई शक नहीं है, ये विल जो हैं, ये ख्वाहिश जो हैं, अब सियासी क़ुव्वतों की तमाम की है, एस्टेब्लिशमेंट की भी है। अब दूसरी बात ये है कि खान का फ़ैसला आना था मंडे को, जो मौखर हुआ, और ये एक जस्टर ऑफ गुडविल था। फिर इतना मैं कह सकता हूँ, जेस्चर ऑफ गुडविल था कि अभी नहीं आया, कि मौखर कर दिया है? मौखर कर दिया। अब कितने दिन और मौखफ कर लेंगे? 36 दिन तो रह गए, जो आपने 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। आज के 5 दिन गिन लें, 31 जनवरी के 36 दिन का काउंटडाउन है। ये गुडविल एक्सटेंड होगा? अगला भी अब मेरा 6 ख्याल है। जनवरी को एक्सपेक्टेड है फैसला, फिर मौखर हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन गया है, तो लिहाजा ये भी कमाल हेल्दी एनवायरनमेंट है सर। आपके 85 लोग कन्विक्ट हो गए मिलिट्री कोर्ट से, आपको हेल्दी एनवायरनमेंट लग रहा है? अच्छा, ये जो आज की कन्विक्शन है ना, इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर यही आपका क्योंकि वो इससे अलग एक मौजू है। बिल्कुल वही कह रही हूँ, तो आप नथी नहीं कर रहे। डायलॉग अलग चल रहा है और ये कन्विक्शंस अलग चल रही है। हम ये समझते हैं और बल्कि मेंटली इस चीज़ पे तैयार भी हैं कि अगर कोई सज़ाएं इन द मीन टाइम आ भी रही हैं, हमने फिर भी डायलॉग को जो है तर्क नहीं करना है। और आज जो ये फ़ैसला आया है, उस फैसले में आपको हैरत हुई होगी, कुछ ब्रिगेडियर्स भी सज़ा पा गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड भी, भांजा भी खान का। हाँ, और अभी जो रिएक्शन आया था बैनुल अक़वामी बिरादरी की तरफ से पहले वाले कन्विक्शंस पे, उसको यकसर बुला के इन्होंने सेकंड ट्रांचे को सज़ा दे दी। अब इसमें अपील की कोई रेमेडी नहीं है। मिलिट्री हायर अप्स पे कर सकते हैं, मगर वहाँ दूसरा हाई पे- कोर्ट में, मगर बड़ी लिमिटेड स्कोप है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, कि उनके अल्टीमेटली ये केसेस लैंड होने हाई कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने हैं। ये आज का जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल का फैसला है, वो जिस तरह होते हैं ना, वो गन एंड कैरट, हाँ, यानी कि मीठा मीठा और कड़वा कड़वा मिला के ताकि थोड़ा सा लिवरेज हासिल किया जाए। बहुत सारी चीज़ें शायद इन्होंने मुज़ाकराती टेबल पे पीटीआई से लेने की डिमांड करनी है, और यूँ जो है ये खान का फ़ैसला मौखर किया जाना, ये फ़ैसला आना, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक चीज़ हमें अब मैं कह सकता हूँ सेफली कि खान इन मुज़ाकरात के नतीजे में बशर्ते कि ये मुज़ाकरात का पहला मरहला मंतकी अंजाम तक पहुँच जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी रुकावटें हैं, कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं सियासी में भी जो उन लोगों को निशाना बना रही हैं जिन्होंने इन मुज़ाकरात के शुरू करने में, मिसाल के तौर पे स्पीकर, जिसको फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी मरियम नवाज ग्रुप कह रहे हैं कि ये ना मुज़ाकरात कामयाब हो। मगर होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ सेकंड सर, दो बातें, बुरा ना मनाइएगा। मुझे लग रहा है कि आप एक पैरेलल यूनिवर्स में रह रहे हैं और खान की अडियाला जेल में एक और यूनिवर्स है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि इन असीरान को रिहा करो, ये कन्विक्शंस हम नहीं मानते, जुडिशल इंक्वायरी करो, सीसीटीवी फुटेज निकालो और उसके बाद ट्रायल्स करो जो जो करने हैं। आप कह रहे हैं ये बैक वक्त साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है, मुज़ाकरात भी चलाएंगे। वो कह रहा है मुज़ाकरात में चलने ही नहीं दूंगा अगर असीरान एक हफ्ते में रिहाई का सिलसिला शुरू ना हुआ। 31 की आज आप लोगों ने डेडलाइन दी है, एक महीना 36 दिन आप लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मुझे नहीं समझ आ रही आप मुख्तदर हलकों के हवाले से इतने पुरुमीद क्यों हैं। आपने आखिरी ISPR की स्टेटमेंट पढ़ी है जो पहली कन्विक्शंस के ऊपर आई है? 25 मुजरिमान को जब कन्विक्ट किया गया है, पॉलिटिकल दहशतगर्दी वाली सोच, तमाम तर बात जो है वो मास्टरमाइंड इमरान खान की तरफ इशारा कर रही है।
सो मास्टरमाइंड जिसको वो करार देते हैं, देखिए ISPR के जितने भी प्रेस रिलीज जारी हुए हैं उसमें अमूमन हमेशा हमारे लिए एक थ्रेट रहा है। ये किया वो किया, इल्ज़ामात भी रहे हैं, साथ में थ्रेट भी रहा है। लेकिन इन मुकदमात को पूरी कौम और दुनिया और हम सब समझते हैं इनकी कानूनी हैसियत क्या है। ये जो आज सजाएं नहीं हुई आपके है, समझने से क्या होता है सर? हो तो रहा है ना, एक फ़ायदा तो हुआ है ना। टेबल पे बैठ गए हैं सब। नहीं, फ़ायदा ये है कि जो ये मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने जो फैसले दे दिए हैं, अब हम फौरी तौर पे अदालतों से रजू तो कर सकते हैं ना। शहादत इनके पास क्या है, मिस्टर ए ने खुद हमारे सामने जुर्म तस्लीम किया, बस जी सज़ा। मिस्टर बी ने तो तस्लीम आप कह किया। रहे हैं कि ये सजाओं का इस मुज़ाकराती अमल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरा ख्याल है पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना नहीं चाहिए। और दूसरा आप कह रहे हैं कि ये हाउस अरेस्ट और मुंतकली के हवाले से ये आइडियाज़ फ्लोट किए गए हैं हुकूमत की तरफ से। हाँ, लेकिन शायद PTI की टीम को ये कबूल नहीं होंगे, क्योंकि वो अलग बात है, मगर आपको लगता है हुकूमत बर्दाश्त कर सकेगी? इमरान खान बनी गाला में भी बैठा है इमरान खान। नहीं, इमरान खान जो हैं उसका अब इस वक्त तक तो उन्होंने तमाम मकासद हासिल कर लिए जेल में रखने से। हाँ, मैंडेट ले गए, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, ट्रिब्यूनल के फैसले हो गए, ज़िमनी इलेक्शन ले उड़े। कोई ऐसा काम अब रहता नहीं है जो खान को अंदर रख के पूरा किया जाना मकसूद है। अलबत्ता खान जितना मज़ीद जेल में रह रहा है, लाजिमन ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से तो पूरी कौम दो चार है। ये भी यकीनी बात है कि बहुत सारी जो ग्राफ हैं इदारों के वो बहुत ही ज़्यादा गिर गए हैं। आपको क्या लग रहा है खान कब तक बाहर आएगा? आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? अगर 20 दिसंबर की बात हो गई थी, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा और पेशरफ्त आपके हक में आना शुरू हो गई है। चाहे मेरा ख्याल है, और ये पहली दफ़ा मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूँ कि खान जो हैं वो ये ईद जो है अपने घर में करेंगे आपको लगता है कि छोटी ईद घर पे करेंगे इंशाल्लाह। और रिहा होके हाउस अरेस्ट के अंडर नहीं? नहीं, रिहा होगी। ठीक है। और आप सबसे आपको लग रहा है उनका फिर उठना बैठना भी सारा मामला मेरा पार्टी ख्याल के है देखेंगे खुद? बुशरा बीबी बैक सीट ले चुकी हैं, खान ने तो अब वादे कर दिया है ना। उनका अब कोई अमल दखल नहीं है। वो तमाम अब वाले खाना के हवाले से उन्होंने कहा है कि एक वक्त की ज़रूरत के तहत वो सामने आए, न अब किरदार अदा पॉलिटिकल मीटिंग्स का भी हिस्सा नहीं बन रही जूम पे या नहीं स्काइप पे? नहीं बन रही। ठीक है, मुकम्मल बैक सीट ले ली उन्होंने। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है सर। अगले 36 दिन बहुत अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हल्फ उठाना है। फिर आपको लग रहा है कि फरवरी तक इमरान खान बाहर होगा, जो मामला चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा इमरान खान का? आज जो ये ब्रिगेडियर्स की कन्विक्शंस हुई है, फैसला तो अभी तक तहरीरी तौर पर हमारे सामने नहीं आया है कि इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का सरबराह यानी सदर कौन था, जो उनकी टर्मिनोलॉजी में डिटेल रीजनिंग नहीं होती? नहीं रीजनिंग होती है, एविडेंस होता है, ग्राउंड नहीं, आपके सामने कुछ नहीं आएगा। मिलिट्री कोर्ट में सिर्फ कन्विक्शन या एक्विटल का एक लाइन आती है और कुछ नहीं आता। अब वो अपील में जाएंगे बाहर। नहीं। इसके लिए मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल होते देख रहे हैं इमरान खान का? मैं बिल्कुल पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि आजकल के आलात के तनाजुर में मैं खान के मिलिट्री ट्रायल होते नहीं देख रहा हूँ।